Hello class 10 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. So class, in the last video we have discussed some string functions. So let's continue with some another functions. So the first function of today's class is integer compared to string function. So it is on page number 231 of your book. So compared to, as the name implies, this function is used to compare the string because the argument in this function is string. So basically it is used to compare टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है. बट देर इज़ अ कंडीशन, द कंपैरिजन आर बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब करेक्टर्स जो कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर्स है उनको देखा जाएगा, लेंथ को नहीं इस चीज़ में इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, लेंथ इस कंपैरिजन का बेसिस नहीं होगा. क्या बेसिस होगा? नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग. क्लियर? सो देर आर थ्री कंडीशन. सेम है तो आपको ज़ीरो रिटर्न करेगा. अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ा है, सपोज ST1 इज़ ग्रेटर देन ST2, in that case it will return to a value which is greater than 0. और less than 0 कब रिटर्न करेगा? जब string 1 less than होगा string 2 से. So we have an example. तो एग्जाम्पल में हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक x में स्टोर है कंप्यूटर एंड एक है y में स्टोर साइंस. तो दिस इज़ योर फंक्शन. क्लियर? आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर में होगी क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक इंटीजर मिल सकता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस c को s के साथ कंपेयर करना है, मतलब ASCII कोड. I think 60 C has a ASCII code 67 and S has a ASCII code I think 83. So of course this one is less. तो क्या होगा? 67 में से 83 को माइनस करेंगे तो we will get -16. तो आपको n में क्या रिटर्न होगा? -16. क्लियर? सो the function compare to performs comparison based on the lexicographic analysis of the strings. What is lexicographic? Like searching a word in the dictionary. So basically lexicographic means जब हम करेक्टर्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं, करेक्टर्स को कंपेयर करते हैं. सो इट रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ द ASCII code of the corresponding characters. If the ASCII codes of the corresponding characters are the same throughout the string, then both the strings are declared to be same and it will return 0 to you. So now there is a note: during comparison the control keep on comparing the corresponding characters of both the string. Wherever the corresponding character are found different, the comparison will terminate, resulting in difference of their ASCII code. That means यहीं पे डिफरेंस मिल गया था तो यहीं पे आपको वैल्यू दे दी, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो देयर इज़ नो नीड टू गो फर्दर. सो आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट फंक्शन इज़ कंपेयर टू बट इग्नोर केस इन दिस. ठीक है, उसमें केस सेम होना चाहिए बट इन दिस वन केस डजेंट मैटर. So it is the another modification of compare to function. It is used to perform the same task which above mentioned function does. वही आपको 0 सेम पे रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन 0 आपको ग्रेटर देन पे करेगा और लेस देन पे आपको लेस देन पे करेगा. ठीक है. सो इन दिस वन ओनली डिफरेंस इज दैट कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग आफ्टर इग्नोरिंग द केस. केस को इग्नोर कर देते हैं, केस डजेंट मैटर इन दिस फंक्शन. सो S1 and S2 there are two variables. S1 has value computer and S2 has value computer, but cases यहाँ पे different है, कोई बात नहीं, doesn't matter. So there is a function, so it will return the value for n as 0 as both the string are considered to be same. आपको 0 मिलेगा क्योंकि अब यहाँ पे C और C सेम है,
जब हम लोगों को मैटर ही नहीं कर रहा है कि हमें केस देखना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर सेम, सो इन दैट केस इट विल रिटर्न सेम वैल्यू टू यू. So now there is a function difference between equals and equal to. So this is, you have to do it clear. So after this trim function, trim क्या करता है, basically delete करता है. क्या delete करता है, क्या remove करता है, your leading and trailing blanks from the string. string से जितनी भी आपकी blank spaces हैं उनको रिमूव करता है. विच आर अवेलेबल, द अदर ब्लैंक विच आर अवेलेबल इन बिटवीन द वर्ड विल रिमेन अनचेंज. बट अगर दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है विच इंटैक्ट, वो इंटैक्ट रहेगी. बट जो फर्दर है, फॉरवर्ड है और बैकवर्ड पे जितनी भी स्पेसेस है, दिस फंक्शन विल रिमूव दैट स्पेसेस. सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर, एंड देर इज़ अ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर. सॉरी. सो p इक्वल्स टू दिस इज़ योर फंक्शन. प्रिंट स्टेटमेंट पहले क्या था और बाद में क्या है. सो आफ्टर यूजिंग द ट्रिम फंक्शन इट विल return a computer like this to you. So after this string ends with string s. So यहाँ पे ये boolean वैल्यू आपको रिटर्न करेगा सबसे पहले. और द थिंग इज़ कि इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपने जो स्पेसिफाई किया है जो स्ट्रिंग, आपका वो स्ट्रिंग उसके साथ ख़त्म हो रहा है, एंड पे वही वैल्यू है. सो कंप्यूटर इज़ फन. अब आपको ये देखना है, बी में आपने वो वैल्यू डाल दी जो आप चाहते हो कि मैं देखूं कि वाकई फ़न से ख़त्म हो रही है ये चीज़. सो एक्स इक्वल्स टू पी डॉट एंड्स विद बी, इट विल रिटर्न ट्रू. क्यों ट्रू करेगा? बिकॉज फन से ही आपका पूरा सेंटेंस एंड हो रहा है, और आपको चेक करने के लिए आपने क्या दिया था, फन. स्टार्ट विथ. अब स्टार्ट में देखना है आपको कि स्टार्ट में जो आपने स्पेसिफाई, आपने देखना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो योर से शुरू हो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर इज़ फन, देयर इज़ नो योर इन दिस सेंटेंस. तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स. इंटीजर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एस. सो वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हमने किया है इन द चैप्टर नंबर 2 लाइब्रेरी क्लासेस. जब हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम लोग चेंज करते हैं, रैपर क्लासेस. क्लियर. सो किस में है ये, java.lang पैकेज में. सो बेसिकली दे आर यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास. सो here we have an example. यहाँ पे ये स्ट्रिंग है सारे. 67 इज़ अ स्ट्रिंग. बेशक ये एक नंबर है, बट व्हेन यू इनक्लोज्ड एनीथिंग इन डबल कोट्स तो वो क्या बन जाता है आपके पास, स्ट्रिंग. 13.44 इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग. अब आपको ये वाला स्ट्रिंग n1 है आपके पास वेरिएबल, और आपको इंटीजर में, ऑफकोर्स ये अब स्ट्रिंग है, और इसको जब हम इंटीजर में प्रिमिटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 67 ओनली विदाउट एनी ब्रेस. तो उसके लिए फ्लोट एंड डबल. क्लियर. आपको यहाँ फ्लोट में करना है, यहाँ आपको डबल में चेंज करना है स्ट्रिंग को. सो वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर. सो इट्स आई थिंक इट हैज़ ऑल द फंक्शंस. वेरिएबल A has Akash, B has computer, C has easy understanding, D1 has information technology, D2 has information technology, E has कुमार. अब अपर केस में आकाश में चेंज कर दो तो क्या लगाओगे, टू अपर केस. ठीक है. अब रिप्लेस करना है आपको n को m से. यहाँ पे n है तो ये रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहे हो. इन द थर्ड ट्रिम फंक्शन D1 आप इक्वल्स यूज़ कर रहे हो. यहाँ पे आप लेंथ फंक्शन को ले रहे हो. ठीक है, इक्वल्स. और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक एक करेक्टर जब उठा रहे हो, ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, T, तो वो आपको रिटर्न हो जाएगा. और कंकैटिनेट क्या कर रहे हो आप लोग, कुमार A को E से, तो आपके पास आउटपुट क्या होगा, आकाश कुमार.
Clear? This is the output. So in the next one we have some other functions, but this is from string buffer class. ठीक है, string buffer से है. So the thing you have to do is, on page number 236 we have some of the very simple examples of string. So please try first 5 examples. Okay, first 5 solved examples to solve program. So class, thank you so much. Have a good day.